See, what are the identifier? Identifier are used to give the name, or these are the name of the different building blocks. Like, like give the name of the identifier means name of the class, name of the variable, name of the function. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम नेम देते हैं ना, दैट इज ओनली द आइडेंटिफायर. ओके, तो अब ये कुछ क्वेश्चन है. सो ये क्वेश्चन है कि विच आर द करेक्ट और विच आर रॉन्ग, मीन्स वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर. तो रोल नंबर हम किसी क्लास का या किसी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नो, you cannot give. It is invalid. Why it is invalid? Because, see, answer I'm writing over here. Invalid because space not allowed. देखो यहाँ पे रोल स्पेस no मीन्स यहाँ बीच में स्पेस है ना, तो किसी भी वेरिएबल में हम ऐसे नहीं लिख सकते रोल स्पेस नंबर. ओके, और कहीं पर भी हम ऐसे स्पेस नहीं छोड़ सकते, किसी क्लास के नेम में, किसी फंक्शन के नेम में, किसी वेरिएबल के नेम में, किसी में भी. ओके, so that's why it is invalid. करेक्ट? ओके ओके, अगर इसका मुझे इसका वैलिड लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इफ आई वांट टू राइट डाउन द वैलिड, तो हम क्या करेंगे? If I want to give the valid for this, so we have to remove the space. और या तो ये valid है, okay, या फिर underscore. You can use the underscore because underscore is allowed. Whenever you want to give the separation, no, so this separator is allowed, underscore. Okay, तो space नहीं दे सकते, white space is not allowed, but the underscore is allowed. ओके, अगर ये ऐसे लिखा होता रोल विदाउट स्पेस नंबर और दी ये रोल नंबर, तो ये दोनों ही करेक्ट होते, बोथ आर वैलिड आइडेंटिफायर नेम. ओके, क्लियर? द नेक्स्ट इज P plus Q. So this plus, it is also invalid. Why it is invalid? Because this plus symbol is also not allowed. Okay, means any special symbol is not allowed. Special symbol means operator also the special symbol. Write them. Okay, clear? Then third one is int. Why it is valid or invalid? Tell me. It is invalid because this is the keyword. Yes. Keyword means what? Keyword is also not allowed as the name of the variable, name of the class, means name of the identifier. Keyword are not allowed. Why not allowed? Because keyword is already having the specific meaning, है ना? Keyword होता क्या है? Means reserved words convey to the compiler having the special meaning. ये definition है ना keyword की, ये सारी definition मैंने notes में लिखी भी है, और all these definition you must learn. ओके, तो कीवर्ड ऑलरेडी उसका एक मीनिंग है, तो अगर उसका पहले से मीनिंग है और हमने उसको फिर से डिफाइन कर दिया, तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज. दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड. ओके, देन दिस 7 day, व्हाट इज इनवैलिड इन दिस? यहाँ पर digit you can use but not at the start. Okay, that's why it is invalid, because digits are not allowed. Digits can be used, or you can write digit cannot be used. Cannot be used at starting, or identifier cannot be start with the digit. Okay, understood? हाँ, इसका अगर वैलिड होता, कैसा वैलिड होता? days 7, then it would be valid, है ना? अगर मुझे इसी का वैलिड लिखना है तो हाउ कैन आई राइट?
डे 7 ऐसे हम लिख सकते हैं, और D7 ऐसा भी लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टार्ट द आइडेंटिफायर विद द डिजिट. ओके, देन दिस फिफ्थ वन इज वीक. तो वीक तो करेक्ट है, देन व्हाट इज इनवैलिड इन दिस? इसके अंदर इनवैलिड है ये पैरेंथेसिस. यू कैन नॉट राइट अगेन, दिस इज द स्पेशल सिंबल ना, तो स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउड. अंडरस्टूड? जिसे भी समझ नहीं आ रहा हो यू कैन आस्क. क्लियर? देन नेक्स्ट इज रोल नंबर. ये मैंने ऊपर बता दिया है, इट इज वैलिड. दिस इज दी वैलिड. देन रोल नंबर 5 अगेन इट इज वैलिड. क्यों वैलिड है? बिकॉज बाद में तो हम डिजिट यूज कर सकते हैं ना. The next, dollar. Dollar is also allowed. This is also valid. And underscore roll number is also valid. Clear? Yes, literals. What are the literals? Literals are the constant values given to the variable. मतलब वेरिएबल में जो हम वैल्यू डाल देते हैं ना, उसको हम लिटरल्स बोलते हैं. ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू गिवन टू दी वेरिएबल, दैट इज ओनली द डेफिनेशन. ये हाफ लाइन की डेफिनेशन होती है लिटरल्स की. These are this definition also I have given in the notes, और जब पढ़ाया था तब लिखवाई भी थी. ओके, अब ये लिटरल्स मतलब कि वो वेरिएबल की वैल्यू है. तो वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू डालते हैं? जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसी डेटा टाइप की वैल्यू डालते हैं ना. तो अगर लिटरल का टाइप पूछा जाए, इसका मतलब कि डेटा टाइप पूछा जा रहा है. ओके, इसका मतलब कि डेटा टाइप पूछा जा रहा है. तो अब ये देखो, सिंगल कोड में ए, सिंगल कोड में ये वाला सिंबल मॉड्यूलर, सिंगल कोड में बैकस्लैश टी, ये सब क्या है? सिंगल कोड में स्पेस. ऑल दीज आर कैरेक्टर लिटरल्स. कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो. ओके, तो ऑल दीज आर कैरेक्टर लिटरल्स. तो यू कैन राइट ओवर हियर कैरेक्टर और केयर, कैरेक्टर लिटरल्स. ओके, और ये देखो बैकस्लैश टी, ये तो एस्केप सीक्वेंस है ना. बैकस्लैश टी इज द एस्केप सीक्वेंस. क्यों यूज आता है बैकस्लैश टी? टैप स्पेस देने के लिए. जब भी हम एस्केप सीक्वेंस, जब भी हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले कराना होता है. देखो प्रोग्राम्स में वी आर यूजिंग ना डिस्प्ले द आउटपुट इन द टेबुलर फॉर्मेट, तो ये बैकस्लैश टी यूज करते हैं, है ना. नल लिटरल्स, नल स्ट्रिंग का लिटरल है. डू यू रिमेम्बर? नल इज द स्ट्रिंग लिटरल. नल तो नल लिटरल होगा ना. नल लिटरल है, हाँ. किसी किसी बुक में ये अलग से डिफाइन किया हुआ है और किसी में ऐसे ही. तो नल हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? मीन्स किसको असाइन करेंगे? स्ट्रिंग को ही असाइन करेंगे ना. ट्रू एंड फॉल्स, बूलियन. बूलियन, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स. देन ये देखो जावा, मैंने डबल कोट्स में लिखा है 1 2 3 4, अगेन डबल कोट्स में लिखा है. देन ये स्पेस डबल कोट्स के अंदर है. देन ज्योति 1 2 3 एट द रेट, अगेन इन दी डबल कोट्स. ओके, तो ये क्या है? अगेन दीज आर दी स्ट्रिंग लिटरल्स. जो भी कुछ भी डबल कोट्स में लिखते हैं वो सभी भी स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, राइट. Then here 2.5e, what is this? Now I'm not going to tell it. Unmute yourself and tell me. ये कौन से टाइप का लिटरल है? Yes. Integer, sorry, float. Float. Sure.
फ्लोट टाइप का Float और double. लिटरल, दो टाइप के लिटरल से न्यूमेरिकल में, एक तो इंटीजर और दूसरा रियल. डू यू रिमेम्बर इट? रियल. फ्लोट ऐसे नहीं बोल सकते ये फ्लोट है या डबल है, ये रियल टाइप का लिटरल है, जिसमें कि हमने साइंटिफिक वैल्यू एक्सपोनेंट वाला भी देखा था. करेक्ट. रियल लिटरल. देन हियर आल्सो दिस इज आल्सो रियल लिटरल. रियल मतलब कि इट बिलोंग्स टू डबल और द फ्लोट. So E के बाद पॉइंट में नंबर दिया 4.8. ई के बाद 4.8 करेक्ट है ना. 10 रेस टू, मिस रियल. हाँ वो भी रियल. 10 सर रेस टू 7th वन इंटीजर होगा. क्या होगा? मिस कॉमन है. 7th इंटीजर होगा. 7th इंटीजर कैसे होगा बेटा? एक्सपोनेंट अपन इंटीजर में थोड़ी लगा पाएंगे. मिस वो कॉमा है ना. कॉमा हाँ. एक्चुअली इट इज नॉट वैलिड, इनवैलिड हो गया ना. किसी भी वैल्यू में miss. कॉमा नहीं लगा सकते ना, इट इज इनवैलिड लिटरल. तो इफ आई एम रिमूविंग इट देन इट विल बिलोंग्स टू रियल, है ना. एंड सेम हियर 10.10 ये करेक्ट है. बट +5 एक्सपोनेंट तो लगा सकते हैं प्लस में साइंटिफिक वैल्यूज, तो ये भी रियल है. मिस. और भी इनके मैंने नोट्स में बहुत भी ज्यादा बाइफिकेशन किए हुए हैं, मगर उतना सच करने की जरूरत नहीं है. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? 9th standard, is it clear to you? You can unmute your